Hello everyone, welcome to another important video, and in this video I'm going to take CAT 2025 slot 3 official quantitative aptitude questions, and ये questions I'll try to solve with the detailed explanation along with some of the tactics so that we can solve the question easily, right? So अगर आपने slot 3 लिखा you can match your answers, right? So let's solve first question of the video. The rate of water flowing through the pipe, three pipes actually, there are three pipes A, B, C, and the rate of flow is given to us A, A, B, and C. So the flow of A is given to us 4, and that of B is 9, and that of C is 36. So rate of flow is actually efficiency, right? This is nothing but the efficiency, right? And the time taken by A to fill up the tank is 15 hours, right? So if we want to calculate the work is nothing but efficiency into time, so this is 4 into 15. So we can assume the capacity of the tank is 60 liter. Now we want all of them to work together. So this is nothing but the work upon the efficiency, combined efficiency A plus B plus C. So what is the total work they have to complete 60, and what is the total efficiency, that is 36 plus 9 plus 4, that is 49, right? So we have to approximate the value, right? So rather than taking 49, I can take 50 in the denominator. So this is nothing but 1.2 hours, or this is 72 minutes, right? So 72 मिनट तब है जब मैंने अपने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा 72 से ज़्यादा आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोलता है अनीता वॉक करती है फ्रॉम A to B, A to C via point B, right? So this is the condition that A to C via the point B, right? Is asking that from A to C, actually the panic tab is not working properly. So this is the walking side and this is the running side from C to A, right? Now it is asking that through the same with a speed 40%, right? 40% का fraction होता है 2.5. So if I take walking as 5x, it means the running speed should be 7x, right? 2 more than, right? Now it is asking that she takes exactly 3 hour 30 minutes, मतलब 7 by 2 hours, right? To walk the distance. So the distance BC can be that is calculated as 5x into 7 upon 2, or 35x by 2. And if I take BA distance, so she can take that is same B2A in the same hour. It means B2A same time, that is 7 upon, but the speed is, अरे भाई क्या पंगा है इसका, 7 by 2 into, so this is very irritating, 49x by 2. So it is a combined distance AB plus BC, right? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 35x plus 49x upon 2, so 84x upon 2, that is 42x, right? Now we want that we have to find the total time in minutes that she would be taking to be walking and B to C running, right? So time A to B plus time B to C, right? तो A to B में walk करना है, that is जो distance A to B का, that is 49x upon 2, और walking का speed है 5x, और रनिंग का स्पीड है 7x, और उसमें बी टू सी में रनिंग करती है तो जो डिस्टेंस है दैट इज 35। अरे भाई जस्ट होल्ड ऑन, ये पंगा क्या है इसका, इरिटेटिंग। Okay, so this is 35x upon 2 into 1 by 7x, right? So after solving it I can get the solution. So x cancel out हो जाएगा, this is 49 upon 10 plus this is 5 upon 2, तो इसको भी 10 बना लेते हैं, तो 49 upon 10 plus 25 upon 10, तो 74 अपॉन 10 आवर्स है, राइट? दिस इज 74 बिकॉज हमने सब कुछ आवर लिया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए टू 60 करेंगे, तो 6 4 24, 6 7 42, 44, सो 444 मिनट इसका राइट आंसर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे 12 लिखा है ना, 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसका पावर है 12x इंटू 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दैट इज 24x प्लस 12 और 5 की पावर 2 है। ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज 8 is 2 की पावर 3 इंटू 4z, 20 कैन राइट दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x, और 5 की पावर भी 12x इंटू
243 is 3 की पावर 5, तो 15x minus 30, right? So I can start calculating the things. So on the left hand side 3 की पावर 12x है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड 3 की पावर 15x माइनस 30 है। तो यहाँ से बेस सेम है, तो 12x इक्वल्स टू 15x माइनस 30, 15x माइनस 30, तो 3x का वैल्यू 30 आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आ जाएगा, राइट? तो x का वैल्यू 10 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड y ऑल्सो। y कहाँ से निकल सकता है? y निकालने के लिए हम यहाँ से 5 की पावर को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो 5 की पावर 2y इक्वल्स टू 5 की पावर 12x, राइट? तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू 12x और y इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ x, तो x का वैल्यू तो 10 आ गया, तो y हो जाएगा 60, राइट? ना y भी निकल गया, x भी निकल गया, बचा है z। तो z कहाँ पे अपीयर हो रहा है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव z और नॉट? नो, राइट हैंड साइड में z है, लेकिन ठीक है। तो इधर 2 की पावर 12z है और z सिर्फ यहाँ पर है 2 की पावर में, ठीक है, 12z। और लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल 2 की पावर है ये है 24x प्लस 48x, दैट इज 72x प्लस 24, राइट? तो यहाँ से z इक्वल्स टू, भाई 12 कॉमन ले लेंगे, तो दैट इज 72, और भी था यार यहाँ पे, 1 मिनट, 24 और यहाँ पे 48, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, कुछ ना कुछ तो है अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल है। 24x z, अच्छा ये भी, ओके, गॉट इट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा चीज़ों को। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, सो दैट आई कैन राइट इट स्मूथली। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 2 का पावर है 24x, 2 का पावर है 24x प्लस 48x प्लस 24, राइट? एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड द 2 का पावर इज 12z प्लस 24x, 12z प्लस 24x, राइट? यहाँ से अब पावर को इक्वेट करेंगे तो 72x प्लस 24 शुड बी इक्वल्स टू 12z प्लस 24 है। यार क्या पंगा हो रहा है? 24, अच्छा 24x प्लस 12z है ना, 24x प्लस 12z, 24x, हाँ 24x प्लस 12z, ठीक है। तो ये बन जाएगा 48x प्लस का 24 इक्वल्स टू 12z, तो 12 कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस 2 इक्वल्स टू z, तो x का वैल्यू तो आपके पास 10 आ गया, तो z इज कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 10 प्लस 2, दैट इज 42। नाउ इट इज आस्किंग दैट x प्लस y प्लस z, so this is 10 plus 60 plus 42, तो 112 इसका राइट आंसर। Now moving ahead to the next question. So we have next question that the average salary of 5 manager and 25 engineer is 60,000 rupees, right? तो 5 manager और 25 engineers, तो इनका एवरेज सैलरी दे रखा आपको, ठीक है, 5 मैनेजर एंड 25 engineers, तो इनका एवरेज सैलरी आपको 60,000, तो हम के ले लेते हैं इंटू 30 पीपल, राइट? ये आपके पास है। नाउ ईच ऑफ द मैनेजर सैलरीज रिसीव 20% सैलरी इंक्रीज, राइट? तो 20% बोले तो एम का 20%, ठीक है, तो 1.2 ले लेते हैं, तो 5 इंटू 1.2 एम हो जाएगा भी 20%, प्लस देयर इज़ नो इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द इंजीनियर्स एंड द एवरेज सैलरी ऑफ 35% से बढ़ गया, राइट? तो एवरेज सैलरी 30, तो 30 इंटू इसका 5% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 60 का 5% हो जाएगा, दैट इज़ 3। भाई 60 का 10% होगा 6, तो 5% 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63K, राइट? अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, राइट, तो ये बनेगा 6 में से m इक्वल्स टू 189 में, तो ये बनेगा 9, 189 माइनस 180, तो 9000। द एवरेज सैलरी ऑफ द इंजीनियर, राइट? अब इंजीनियर्स के पास 25E इक्वल्स टू 180K माइनस 9K, तो ये बनेगा 71K डिवाइड बाई 25, तो 71 इंटू 1000 25, 6 में से 5 गए, 189 में से 180 बचा है, अच्छा 180 है ना, तो 9000 आ जाएगा, ठीक? तो 9 तो आ गया एम का वैल्यू। अच्छा टोटल आपको इसका निकालना है ना, जस्ट होल्ड ऑन। तो इंजीनियर्स के लिए तो मैनेजर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो
हो जाएगा 45K प्लस 25E इक्वल्स टू 180K। के मतलब 1000 है यहाँ पे, तो 25E इक्वल्स टू 135K। ठीक है, तो E इक्वल्स टू 135 इंटू 1000/25, तो 25 चौके 100, 0 4 पंजे 20 और 13 चौके 52 और 2 54, राइट। 54,000 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्यारा क्वेश्चन था अलजेब्रा का कि f(x) एक फंक्शन दे रखा है x² + 3x और ये x² + 3x + 2, राइट। तो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ये नंबर और ये नंबर सेम टू सेम है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको t मान लेता हूँ, तो ये t + 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, f(x) आ गया, ठीक है सर। ना ये जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है f(x) + 1, तो अगर आप f(x) का वैल्यू पुट करते हो तो ये बनेगा t² + 2t + 1, तो दिमाग में घंटी बजे देखते ही ये तो t + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा रूट के अंदर। तो ये 9701 है। इसका मतलब जो रूट के अंदर जो स्क्वायर निकल के आता है वो कंप्लीट पॉजिटिव निकल के आता है। तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया 9700, राइट। नाउ व्हाट आई हैव अज्यूम्ड दैट आपने x² + 3x को t मानना है, राइट। इसका मतलब ये x² + 3x माइनस 9700 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो आपसे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ पूछे, राइट। तो जब आप इसका सम ऑफ रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का b/a, तो माइनस का 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट है। दैट वाज इजी क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग अहेड, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बॉक्स ए एंड बी, राइट। तो ए और बी में जो कॉइन्स हैं वो 17x और 7x के फॉर्मेट में है। आफ्टर 10 कॉइन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बी, राइट। तो यहाँ से 108, यहाँ से 108 प्लस हो जाएगा, तो रेशियो बिकम 37/20। बहुत ही गंदा सा नंबर था, राइट। तो 17 दूनी 340 माइनस ये हो जाएगा 2160 इक्वल्स टू 37 इंटू 7 होता है 289x, नहीं 37 इंटू 7, 7 7 49, 259 माइ प्लस का। अब 37 इंटू 100, यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत एग्ज़ाम में थी, राइट। तो 37 इंटू 8 होता है 296, 37 से कम से तो 3996, ठीक है। तो यहाँ से 340 में से 259 हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 33, तो 81x, राइट। तो यहाँ से 81x का वैल्यू आ जाएगा और इसको प्लस करना पड़ेगा ना, दैट इज़ 3996 प्लस 2160, तो 9 से 15, 40 और 21, 6156, राइट। तो 6156, तो ऐसा मेरा मन कहता है कि कहीं ना कहीं डिवाइड तो हो ही रहा था, राइट। तो आपका भी मन ये कहने लगेगा, अभी देखो। तो अगर मैं 81 इंटू 7 करता हूँ, 7 7 8 जा 56, राइट। तो और 81 इंटू 8 कितना होता है, 8 8 64, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 और ये बचेगा 567, तो 615 में से 567 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 48 और 6, तो ये 6 टाइम चला जाएगा। तो x का वैल्यू 76 आ गया, राइट। मतलब x का वैल्यू 76 आ गया। तो जो टोटल कॉइन्स थे वो थे भाई 17x प्लस 7x 24x, और यहाँ पे 76x का वैल्यू है, तो 24 के 144, 24 7 168 और 14 182, ठीक है। तो ये टोटल कॉइन थे। अब इसको हाफ हाफ करना है तो ये बनेगा 912 912, ठीक है। अब आपने बी में जो कॉइन थी वो 7x है, दैट इज़ 76 इंटू 7, ये बी है कॉइन इन बी, तो 7 42 और 7 7 49 और 5 53, तो 532 ना, ये बचेगा 0 और ये बचेगा 38। तो 38 में से 380 और ट्रांसफ़र करनी चाहिए क्योंकि तब हाफ हाफ हो जाएगा। अभी जो फिलहाल कॉइन है 532 है, आई वांट टू बी इक्वल, तो हमको 580 कॉइन मतलब 380 कॉइन ट्रांसफ़र करने चाहिए, लेकिन उसने बोला है दैट नीड्स टू बी शिफ्टेड फर्दर मतलब आगे फिर से। तो ऑलरेडी 108 तो आप ट्रांसफ़र कर चुके हो, तो इसका जो आंसर बनेगा, बहुत सारे बच्चों ने शायद से यहाँ पे गलत कर दिया होगा, तो 380 में से 108 आप ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हो, तो 272 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोलता है देयर इज अ फॉर ए 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000 द सम ऑफ द डिजिट इन द 1000 ए बी सी डी मान लेते हैं। तो 1000 100 और टेंस, मतलब यूनिट टेंस 100 और 1000। तो 1000 100 और 10 ए प्लस बी प्लस सी, ये 15 दे रखा है, और जो 100 10 और यूनिट प्लेस 100 10 और यूनिट प्लेस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपको 16 दे रखा है, राइट। एंड ऑल्सो द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 6 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, राइट। तो डिजिट इन द 10 प्लेसेस, मतलब जो डी, मतलब जो सी है वो डी प्लस 6 है, सी का वैल्यू डी प्लस 6 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी माइनस ए जो है वो 1 आ जाएगा, राइट। डी माइनस 1 मतलब दोनों का डिफरेंस डी और ए का 1 है। एंड ओके, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, राइट। सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर कौन कौन सा बन सकता है, राइट। तो आप ये कह रहे हो कि सी का वैल्यू, अब ये डिजिट्स है ना, राइट। तो अब डी के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो डी का वैल्यू 1 हो सकता है, डी का वैल्यू 2 भी हो सकता है, डी का वैल्यू 3 भी हो सकता है, राइट। तो उस समय सी का वैल्यू 7 हो जाएगा, सी का वैल्यू 8 हो जाएगा, सी का वैल्यू 9 हो जाएगा, राइट। अब डी माइनस ए 1 है, ठीक है। तो अगर मैं ए का वैल्यू है डी माइनस 1, तो ए 0 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है अगर मैं डी को 1 रख सकता हूँ, राइट। भाई डी 1 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 1। डी को अगर मैं 2 रखता हूँ तो ए जो है वो डी माइनस 1 है, दैट इज़ ए 1 हो सकता है, ठीक है। और ए का वैल्यू फिर 3 रखने पर 2 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकता है। अब ये समझ में आ गया, मतलब ए का वैल्यू 1 आ गया, डी का वैल्यू भी 1 आ गया, सी 7 हो गया, हाँ 1 और 7, ठीक है। और दूसरे केस में 2, ए का वैल्यू 2 पॉसिबल है, तो 2 के लिए डी का वैल्यू 3 लिया था हमने, राइट। तो यहाँ पे डी का वैल्यू 2 लिया था, तो यहाँ फिर डी का वैल्यू 3 आएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, राइट। ये अब आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर पूछता है, ठीक है। द डिफरेंस इन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, राइट। तो सबसे बड़ा नंबर तो मैं यहाँ पे 9 बना सकता हूँ, और सबसे छोटा यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं। तो 2993, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही बन सकता है, और 1082, तो लास्ट में 1, 9 में से 8 गए 1, और 1911 तो है कोई ऑप्शन में 19, कुछ ना कुछ एरर किया इसका, मतलब 2993,082, तो 3 में से 2 गए 1, 9 में से 8 गए 1, यहाँ तो सीधा सीधा 9 बन तो रहा है, 1911 आई थिंक। लेट मी चेक वन मोर टाइम, कुछ एरर तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंडीशन और रह गई ना कि यूनिट डिजिट का सम, मतलब ए बी सी का वैल्यू 15 आना चाहिए, बी सी टी 16 आना चाहिए, राइट। बी सी टी 16 आना चाहिए, तो अभी मैं बी को कुछ भी नहीं अज्यूम कर सकता, मतलब ये अब ये वैल्यू फिक्स है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब बी सी डी का वैल्यू 16 आना चाहिए, 9 3 12 और 4 16, और यहाँ पर इनका वैल्यू 15 आना चाहिए, तो 8 और 1 9 और 6, ठीक है। तो 2493 और 1682, तो 1 1 और 811, तो ये 811 सही बनेगा, राइट। आपको समझ में आया होगा, ये हमने बी का वैल्यू कुछ भी ले लिया हाईएस्ट करने के लिए, एक कंडीशन भी तो फॉलो करनी है ना, कि भैया इनका सम 16 होना चाहिए, है ना। तो 4 9 13 ये तो फिक्स कर दिए, 9 और 4 13, 9 3 12 4 16, और इनका जो सम है शुरू में 3 नंबर्स का, ये होना चाहिए 15। तो यहाँ पे 1 फिक्स हो गया, 8 से 14 और 1 8 और 1 14 15, राइट। तो 811 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस ना नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करते हैं। टिल देन यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 19। पार्ट 2 में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।